सॉरी, अगर आपका ब्रांच बहुत दूर है तो आप 1-2 दिन में कर सकते हैं। बट अगर आपका ब्रांच नजदीकी है तो आप ये आज का जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करके जो भी आपको अमाउंट कलेक्ट हुआ है 2,000 रुपए का, वो आप नेक्स्ट डे पे जाके जमा करिए। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी दिक्कत है, कोई इश्यू आता है, तो आप आपके लिंक्ड ब्रांच एरिया हेड, आपके टेरिटरी हेड, स्टेट हेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सीएससी सेंट्रल टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इस ये ट्रांजैक्शन के वक्त आपको कोई भी इश्यू अगर आता है तो। और आपको जो ये रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक एफएक्यू भी पब्लिश किए हुए हैं कस्टमर के लिए, तो ये भी आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको बीसी सेंटर पे डिस्प्ले करने हैं। तो अगर कोई भी कस्टमर को कोई भी क्वेरी हो तो वो उस एफएक्यू के थ्रू उन्हें जानकारी इसकी इजीली वो प्राप्त कर पाएंगे। और अगर इस बारे में अगर कोई भी फर्दर चेंजेस, कोई भी गाइडलाइन, रिवाइज गाइडलाइन आरबीआई से अगर हमें आगे जानकारी मिलेगी, वो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ताहिर, यू कंटिन्यू। So, as Kritika have told you in a full topic in Hindi, I would be continuing in English. Okay. So I will start about the circular of the 2000 note. 1 minute, just a second. So this call is regarding the RBI circular of the for the 2000 denomination note. So currently on the screen, the advisory would be visible, which we have shared through CSE on the Twitter and the Facebook page. Okay, so in this advisory, we have covered all the points and would request all the BC to please go to this advisory as it is the most important thing that you have to do. So I will now cover fully in detail. So Kirtita, please go on to the slide. Okay, so first let's start with the cash withdrawal. So in the cash withdrawal, the most important thing that you should know that you have to stop giving any 2000 note to the customer. Any customer who are visiting to your shop for doing the cash withdrawal transaction, you have to ensure that you not give any 2000 denomination note. This is the most important thing. Second thing about the cash deposit and the EMI collection. So the transaction which you are doing currently also on the cash deposit about of cash deposit and the EMI, you have to do that as per the normal practice only, and also the limit will be same. Just you have to ensure from now onwards that you have to enter the 2000 denomination note in the one more register, which is a 2000 register, which I will discuss further in the further slide. Okay, so now you have to enter all the deposit transaction. So first you will enter the normal deposit transaction in the transaction register, which have been shared with you earlier. And for 2000 denomination note, you will enter this transaction in both the register. Okay. Second thing, exchange. Exchange is only permitted for HDFC Bank account holder. So you have, this is the first thing you have to listen carefully. Exchange will be only taken for HDFC Bank account holder, and for the exchange, first you have to do deposit, and after that directly you have to do the withdrawal. And the maximum limit for the exchange is only 4000 rupees. Means you can only collect two notes of 2000 denomination. You have to not take any amount for the exchange more than 4000 rupees. And if you are doing any exchange, you have to ensure you have to do first cash deposit, and after that directly it have to be followed by cash withdrawal. I am repeating it again as it is a very important thing. In for the exchange, you have to only take maximum amount of 4000, means 2000 denomination of two note. First, you have to do cash deposit, and after that, it will be followed by cash withdrawal. You have to do directly cash withdrawal transaction. Then only it will be counted as exchange, and this exchange entry also have to be written in the 2000 note register. Okay, so this is about the cash deposit, cash withdrawal, and the exchange thing. Now we will discuss about the register. So for the register part, so this is the earlier register, as I told you earlier also, that the earlier transaction register have to be maintained. This is the additional register which you have to also maintain. So in that
First is date of transaction. You have to write, you have to just enter the date. What is the date of the transaction? In the second column, you have to write the customer name. Whoever customer is coming at your village, you have to write his name. Second thing, HDFC Bank account number. So in this account number, if he is coming for the cash deposit, you have to write his account number, 14-digit account number. And if it is coming for any EMI collection, you have to write his loan account number. After that, it is customer mobile number. You have to enter the mobile number of the customer. Please enter the mobile number properly. After that, you have to enter the amount of the transaction, means whatever the amount would be, you have to enter it properly. And after that, it is denomination. So in the denomination column, for example, if the customer is coming to you and doing the transaction of 3,500, so in that, if you are in the denomination, you have to write that what the denomination is providing. So for 3,500, we can take that he is providing you 2,001 note. 500 2 notes and 100 rupees 5 notes. You have to enter this properly in the denomination. After that, you have to take the customer signature. If customer is not able to do signature, you have to take his thumb. But there should be customer signature should be available. After that, you have to do your own signature, and this register have to be maintained properly. The important point that in the register you should maintain that the register should be clear and in the readable format. Means that if you are entering it, if you are entering any transaction in the register, please ensure that you are entering it clearly. Don't just write it anyway that someone else is not able to read. Because RBI can do and RBI can visit anytime and they may check the record. And if it is if they will not get any record, then it will be problem for you also. So it's better that the register is maintained properly in a clear format. Then after the register, BC should not take any charges from the customer. Whether directly or indirectly, BC should avoid taking any charges from the customer. Second thing, that any cash deposit or action which is being collected from the customer, BC should ensure that it deposit that amount in the nearest branch of the HDFC Bank only. Okay, the amount have to be deposited in the nearby HDFC Bank only, and if preferable, please do it on daily basis. Okay. After that, if you are facing any issue even after this call, or you are not able to understand anything, you can contact to the link branch or to your area head or territory head. Also, you can contact CSC team or you can contact us. Also, we have provided the FAQ, which is frequently asked question to the CSC about this 2000 note circular, and we have asked them that they would have shared it to you. So request you to take a printout of it and paste it in all of your shops. Okay. The most important thing, this is the guidance which we have received currently from the Reserve Bank of India. There maybe they can change any advisory, so it will be communicated to you if there is any further changes. So this is the about the 2000 circular. Now I would hand over it to Mohan sir, so he will take further. तो अभी ये ट्रेनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में की गई है। अभी आई थिंक एक जन ने, स्वप्निल जी ने इधर चैट पे लिखा है कि हिंदी में ट्रेनिंग कीजिए। स्वप्निल जी, ये ट्रेनिंग ऑलरेडी हिंदी में पहले किया गया था, उसके बाद इंग्लिश में किया गया है अभी। तो और आपका अगर कुछ क्वेरी है तो मैं अभी सब माइक्स अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, सवाल जो पूछेंगे, सिर्फ जो 2000 रुपीज का ट्रेनिंग है उसके सिलसिले में पूछिए। और जिन्होंने आज का ट्रेनिंग लेट ज्वाइन किया है या मिस हुआ है, तो वापस कल ये सेम ट्रेनिंग कल भी होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल भी ज्वाइन करके इसका फायदा उठाइए। मैं अभी सब माइक्स अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके जो सवाल है आप प्लीज पूछिए। हाँ, तो अभी सबको परमिशन दिया गया है, अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं एक एक करके। हेलो। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ जी। सर, ये जो कस्टमर है HDFC कस्टमर एक्सचेंज करना नहीं चाह रहा, जस्ट वो डिपॉजिट चाह रहा है। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं 2000 नोट्स उसके अकाउंट में? तो अपना जो परमिशन तो है 10,000 है।
तो अभी फिलहाल तो 10,000 का लिमिट है। ये अभी 15 जून से 20,000 का जो ओरिजिनल लिमिट था वापस रिस्टोर किया जा रहा है, क्योंकि नया सिस्टम था जो जिसमें हम लोग ने मूव किया था तो इंटेग्रा करके, तो उसकी वजह से लिमिट 10,000 किया गया था, पर अभी 15 जून से वापस 20,000 हो जाएगा। ओके सर, और जो एक सवाल है, कस्टमर जी। के अकाउंट में एक 5 नोट्स को डिपॉजिट कर सकते हैं ना, मतलब विड्रॉल नहीं, ओनली डिपॉजिट, नॉट एक्सचेंज एंड नॉट विड्रॉल, ओनली या डिपॉजिट। बिल्कुल 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 कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई तक दिक्कत नहीं है। Later, if he want to withdraw, just we have to withdraw only 4,000 rupees. नो भाई, सी इट इज कमिंग ओनली फॉर विड्रॉल। आज की तारीख में जब वो विड्रॉ करने आता है 10,000 विड्रॉ कर सकता है, तो वैसे भी 10,000 विड्रॉ कर सकता है। 10,000 भी विड्रॉ कर सकता है। मैंने 10,000 मेरे भी। पास एक कस्टमर नहीं नहीं मेरे पास एक कस्टमर आया था, उसके हाँ। उसके पास 5 2,000 के नोट थे, उन्हें पूरा जी। डिपॉजिट करो बोला, ठीक है हाँ। बोल के मैं डिपॉजिट भी कर दिया। जी। लेटर ने क्या बोला मेरे को, उसके 10,000 वापस अमाउंट भी होना बोला। मैं क्या बोला था कस्टमर को, जस्ट 4,000 एक्सचेंज कर सकता हूँ बोल के 4,000 दिया मैं उसे। आफ्टर 1 आवर ने क्या करा, दूसरे उसका अकाउंट, एक SBI है उसके अकाउंट पे, SBI अकाउंट में ट्रांसफर कर लेके बाकी के जो 6,000 रुपए है वो भी अमाउंट विड्रा करके दिया बोला था। मैं उसका SBI से लेटर 6,000 विड्रा करके दिया। वो सब कुछ मुश्किल हो सकता है? नहीं, आप देखिए, अगर उसने 5 नोट डिपॉजिट किए हैं 2,000 के, आप वो नोट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज ए डिपॉजिट। वो 10,000 विड्रॉ भी कर सकता है, पर अगर ओके आप सर, एक्सचेंज ओके। कर रहे हो 4,000 का, तो वो 10,000 की लिमिट में ही आ गया। ऐसे नहीं है कि हाँ, 4,000 अलग और 10,000 अलग, ऐसे नहीं कर सकता है। तो दिन में 10,000 तक वो कर सकता है, वो एक्सचेंज के ओके द्वारा करे या डिपॉजिट के द्वारा करे, तो उसमें कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर के 10,000 डिपॉजिट करके 10,000 भी अमाउंट फिर वापस दे सकते, कोई तकलीफ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओके आप अपना नोटिंग कर लीजिएगा कि 2,000 का नोट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, इतना 5 नोट ये बंदे ने दिया करके, जैसे रजिस्टर ओके सर, मेंटेन करने को कहा गया है। मैं आप सब लोग को ओके सर, वापस बोलना चाहूंगा, जैसे ट्रेनिंग में कीर्तिदा और ताहिर ने बताया, इधर 2 रजिस्टर मेंटेन होंगे। एक जो आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन का रजिस्टर मेंटेन वैसे ही करते हैं डेली ट्रांजैक्शन के लिए, और एक 2,000 के लिए जो अलग से फॉर्मेट दिया गया है वो ट्रेनिंग के लिए, आपको ये पीरियड के लिए जो 2,000 का नोट लेंगे उसके लिए अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जो आरबीआई कभी भी आके इंस्पेक्ट कर सकती है। ओके सर, थैंक यू। पर 10,000 और 4,000 एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ, 14,000 नहीं है, 10,000। वो नहीं अगर 4,000 ओनली एक्सचेंज 10। करता है तो हाँ, ओके ओके। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है? एनीबडी एल्स हैज एनी अदर क्वेरी? हेलो या सर, नमस्ते सर। जी बोलिए। सर, मैं कर्नाटक से रायचूर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। बोलिए सर, हमें बोलिए अकाउंट बोलिए। ओपन खेलते ना, डिजिटल अकाउंट HDFC का, हाँ हाँ। उसमें KYC में कन्नड़ नहीं आ रहा सर, कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं ऐड नहीं हो गया अभी तक। तो मेरा अगेन विनोद जी रिक्वेस्ट है, ये ट्रेनिंग 2,000 के नोट का लिए है। आपका अगर कोई और इशू आ रहा है, आप अपने CSC स्टेट हेड या बैंक के जो एरिया हेड है उनसे आप टेकअप कर सकते हैं, जो भी इशू आ रहा है। ये ट्रेनिंग 2,000 के नोट के सिलसिले में है, तो इसके एनी एनी क्वेरी इसके रिगार्डिंग दिस 2,000 यू कैन आस्क नाउ विनोद। ठीक है सर, ठीक है। जी जी जी। Anybody else has any other query? हेलो सर। या बोलिए सर मैं यूपी सीतापुर से बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर ये पूछना था कि 2,000 के जैसे कस्टमर के नोट डिपॉजिट किया मैंने, तो मैं अपनी ब्रांच में जाके कितने मतलब 10-12 नोट आ गए, तो एक दिन में मेरी ब्रांच क्या 10-12 नोट मुझसे डिपॉजिट कर लेगी? आप अपने अकाउंट में 1129 का जो BC का जो करंट अकाउंट है, आप जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी वैसे भी नहीं है। अच्छा सर। जी सर जी। अगर किसी कॉमन कस्टमर का हो HDFC अकाउंट में?
हेलो। नहीं, अगर अगर आपने जैसे आपने अगर AEPS का ट्रांजैक्शन किया है सिस्टम में, जो अपना बैंक का सिस्टम जो दिया गया है, उसके थ्रू जो जी। आपको डिपॉजिट मिला है वो पूरा आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई इसमें कोई बैंक आपको सवाल नहीं पूछेगी। अच्छा सर, जो पर रजिस्टर आप पे नोट। फरहान जी, आपने जो आपके केबीएस से डिपॉजिट लिए हैं, ठीक है, जो तो आपके जी केबीएस में वो एंट्री आ जाएगी कि आपने किन कस्टमर से 2,000 रुपए के या फिर आपने किन कस्टमर का ट्रांजैक्शन किया है। फिर आपके रजिस्टर में भी एंट्री आ जाएगी, जो आप रजिस्टर लिख रहे, आप बना रहे। आप जब यस आगे सर। बढ़ी, आपको अमाउंट एचडीएफसी बैंक में जाके जमा करनी है, क्योंकि जैसे कि अभी ट्रेनिंग में भी बताया कि आप बैंक अकाउंट में जब जमा करेंगे तो आगे चल के कभी भी आपको बैंक है या सीएससी है आपको पूछ सकती है कि आपके अकाउंट में, खाते में जो पैसा जमा हुआ है, ये किन जी किन कस्टमर्स का पैसा है। तब आपके पास वो रजिस्टर की एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सभी लोगों से, आप सभी लोगों से यही है कि जो भी आपके सेंटर पे आके ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, वही जी पैसा आप आगे जाके बैंक में जमा करें, आपके अकाउंट में जमा करें, और वो कस्टमर्स की जानकारी आपके रजिस्टर में आप अच्छी तरह से बनाए रखें, ताकि आगे चल के आप वो रजिस्टर जो है वो दिखा सके बैंक को या आरबीआई को या फिर सीएससी को। अभी जो हिना जी ने कहा है उसको मैं जरा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए फरहान जी कि आपको सिर्फ 2 नोट डिपॉजिट हुए, आप जाके बैंक में 20 नोट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो वैसा अगर मिसमैच हुआ तो बाद में आप अकाउंटेबल रहेंगे, आरबीआई को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जी मतलब अगर आपके 20 नोट आए हैं कस्टमर के, आप 20 नोट डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ज्यादा नोट खुद के डिपॉजिट करने हैं तो आपको आपके पर्सनल अकाउंट में डालना है, सीएससी के वो जो बीसी का 1129 अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसमें नहीं डालना है। तो जो आपके कस्टमर के ट्रांजैक्शन से आए हैं नोट, वही आपको वो रजिस्टर में मेंटेन करना है, वो टैली होके उतने ही नोट आप डिपॉजिट करेंगे। कल को उसमें मिसमैच हुआ तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा उस पर फिर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर मैं किसी अदर वर्क से मेरे पास 2000 नोट आते हैं, जैसे कि बिजली बिल वगैरह का काम होता है, उसमें कस्टमर आके दे जाते हैं 2000 के नोट, तो अगर वो मैं अपने अकाउंट में ये तो बीसी वो अकाउंट आप में ना। अपने पर्सनल अकाउंट में डाल सकते हैं फरहान जी, यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। 1129 में जैसे हिना जी ने बताया, जो केबीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन है, वही आप कर जी पाएंगे, वही डाल पाएंगे, क्योंकि वो टैली होना ही है। जी, वो टेली होना है। जी जी जी। इंडिविजुअल अपना 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 2000 का नोट नहीं डाल डाल सकता। आप अपना 2000 का नोट आपके खुद के अकाउंट में डाल दीजिए, आपको बैंक कुछ नहीं कहेगा, भले एचडीएफसी बैंक भी हो, कोई तकलीफ नहीं है। आपका खुद का भी सेविंग्स अकाउंट या होगा ना बैंक में, तो जी जी, वो अदर। आप उधर डाल देंगे, कोई नहीं पूछेगा उसमें, कोई कोई इसमें सवाल नहीं पूछेगा उसमें। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है। जी जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। रामकोला कुशीनगर से बोल रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश। हुकुम। राजकुमार राजकुमार यादव बोल रहे हैं सर, बोलिए बोलिए सीएससी राजकुमार जी, भी। बोलिए जी बोलिए। सर, ये कह रहे हैं कि कस्टमर से मैक्सिमम कितना नोट मतलब एक दिन में लेना है 2000 का। तो अगर कोई एक्सचेंज के लिए आ रहा है तो 2, और अगर डिपॉजिट के लिए आ रहा है तो आप 5 पकड़ लीजिए, टोटल आप ले सकते हैं। 5 के ऊपर एक एक कस्टमर से नहीं ले सकते फिलहाल। 15 जून के बाद वो 10 नोट हो जाएगा डिपॉजिट, जो अलाउड होएगा 15 जून के बाद। फिलहाल 5 नोट ले सकते हैं आप। 5 नोट ले सकते हैं। हाँ, कस्टमर का अगर आप केबीएस के थ्रू कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। यस। ठीक है सर, यही जानकारी लेना था। जैसे कई जी लोग जी। आ रहे हैं तो मतलब ज्यादा, मतलब 50 100 चाहे 30 40 50 दे रहे हैं, तो मतलब हम मना तो कर दे रहे हैं कि उनको, मतलब हाँ, अभी नहीं फिलहाल हो मना कर पाएगा। लीजिए, बिकॉज आप 5 के ऊपर दिन में नहीं ले सकते एक कस्टमर का। और अगर ज्यादा आ रहा है उनके पास तो उनको फिर रिक्वेस्ट कीजिए, लोकल बैंक में जाके डाल देंगे वो लोग, अपने बैंक में, जी अपना एचडीएफसी बैंक नियरेस्ट ब्रांच में फिर। जी जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। और किसी का कुछ सवाल? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं मोनू मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ, यूपी। बोलिए 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 बोलिए। सर मैं ये जानकारी चाह रहा था, ये हमें कैसे मालूम होगा, आपको कैसे मालूम हुआ कि हमें अपने कस्टमर से कितने के नोट कितने लिए हैं? तो इसलिए रजिस्टर मेंटेन किया गया है ना मोनू जी। अगर आप कह रहे हो कि मेरे को 5 नोट आए हैं, तो रजिस्टर में 5 नोट दिखने चाहिए 2000 के, वो कस्टमर के अगेंस्ट। नहीं, वो तो रजिस्टर तो मेंटेन करते ही हैं।
बट इसमें ये हाँ, तो तो ऑप्शन वो जो आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे मोनू जी, उतने का आप ट्रांजैक्शन भी करेंगे ना केपीएस में। आज नहीं है ना। अगर मैं मोहन बजाज हूँ, मैं आया हूँ आपके पास, अच्छा, आपने रजिस्टर में लिख दिया मोहन बजाज के अगेंस्ट की 5 नोट मोहन बजाज ने दिए, तो मोहन बजाज के अकाउंट में 10,000 का डिपॉजिट भी दिखेगा ना वो दिन पे। वही 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 बात कर रहा हूँ सर मैं, कि इसमें तो मान लो कि हमें किसी के अकाउंट में अपने कस्टमर के 10,000 रुपये डालने हैं, बट लेकिन उसमें ये तो ऑप्शन नहीं आता ना कि हम उसमें 2,000 के डाल रहे हैं या 500 के डाल रहे हैं। तो मोनू जी देखिए, आप एचडीएफसी बैंक के बीसी है, ठीक है, और आप बीसी होने के नाते आपकी ये इसीलिए तो जिम्मेदारी बनती है ना कि बैंक आपको आज क्यों ट्रेनिंग दे रहा है, सीएससी आपको क्यों ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि आप ये काम जिम्मेदारी से करें। अगर आपके पास कोई कस्टमर 2,000 के नोट लेकर आ रहा है और अगर वो 5 नोट लेकर आ रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप रजिस्टर में ईमानदारी से लिखे कि आपके पास 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ डिपॉजिट का और 5 नोट आए। अब देखिए आगे चल के ये 2,000 का नोट आपको भी तो जाके बैंक में जमा करना होगा, है ना कहीं आप जमा करेंगे। आप इसको अपने पास रख के तो क्या करेंगे। तो जब भी आप बैंक में जमा करने जाएंगे, तो ये आपने कस्टमर के बिहाफ पे ये नोट लिया है, ताकि आप भी बैंक में आपको कभी भविष्य में चाहे बैंक पूछेगी या सीएससी पूछेगा कि भाई आपके खाते में ये 10,000 रुपए आए हैं, आपके जो वीएलई अकाउंट है 1129 अकाउंट, ठीक है, उसमें आप 10,000 रुपए जब 2,000 के नोट जमा करेंगे, तो बैंक तो ये नोट का डिटेल्स ले लेती है कि आपने 2,000 के कितने नोट जमा करे हैं, ये तो बैंक में आ जाएगा। तो फिर बैंक भी आपको पूछेगी कि भाई आपने ये आपके पास ये 5 नोट कहाँ से आए, तो तब आपके पास ये जो रजिस्टर में लिखा होगा ना वो आपके काम आएगा। तो इसीलिए बीसी होने के नाते आपकी भी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये जो जानकारी है 2,000 के नोटों की वो पूरी ईमानदारी से अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करें। थैंक यू मैम। मैम एक चीज और बता दीजिए, जैसे कस्टमर ने मिक्स नोट दिए हैं, जैसे 2 दिए हैं 2,000 के, 2 दिए हैं 500 के, 100 के भी दिए हैं, तो ये जो 2,000 का रजिस्टर जो आप नया बनाना है हम लोगों को, उस पे ओनली 2,000 की एंट्री होगी। नहीं तो देखिए फरहान जी, अभी आपको ना स्क्रीन पे ये रजिस्टर का फॉर्मेट एक बार दोबारा दिखा देते हैं, ठीक है। तो जहां यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया, एक उदाहरण दिया है कि मानो आपके पास 3,500 का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें 2,000 का केवल एक नोट आया है, 500 के 2 नोट है और 100 के 5 नोट है। तो इसकी पूरी आप ये ट्रांजैक्शन की एंट्री यहाँ पे करेंगे। आप टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पे लिखा है वहां पे आप 3,500 रुपए लिखेंगे, और उसके बगल में जो डिनोमिनेशन का कॉलम है वहां पे आप लिखेंगे 2,000 का 1, 500 के 2 और 100 के 5, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसमें जो जो अलग अलग नोट आए हैं वो सबकी जानकारी यहाँ पे आप लिखेंगे। मतलब सारे नोटों की जानकारी, मतलब 2,000 के भी और प्लस 500 की भी जानकारी इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे बिल्कुल, जो हमने यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि आपको 2,000 का भी लिखना है, क्योंकि आपकी 500 देखिए कॉलम तो एक ही बनेगा आपका, ठीक है, जो आपकी जो कस्टमर की जानकारी होगी वो तो एक ही होगी। यहाँ पे अकाउंट नंबर, नाम, तो मोबाइल नंबर तो एक ही जगह पे आएगा। फिर आप 3,500 रुपए लिखेंगे ट्रांजैक्शन का जो कॉलम है वहां, ठीक है। और डिनोमिनेशन लिखेंगे हाँ, नोट। फिर डिनोमिनेशन में आपको 2,000 का भी लिखना है, 500 भी लिखना है, 100 भी लिखना है, ताकि आपका जो अमाउंट का कॉलम है जहां 3,500 है, वो कॉलम और डिनोमिनेशन का जो कॉलम है वो दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने यहाँ 3,500 लिख दिया है ट्रांजैक्शन का अमाउंट और बगल में सिर्फ 2,000 रुपए लिखा है, तो वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। तो उसका फिर वो सही नहीं होगा, तो आपको सारे नोट यहाँ पे लिखने हैं। और मैम डेली बेसिस पे जो रजिस्टर मेंटेन है उस पे भी एंट्री होगी। तो देखिए जो आपकी डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, वो आप वैसे ही एंट्री उसमें करिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तो दोनों पे लेकिन कस्टमर जहां पर के भी, हाँ, लेकिन जहां पर दोनों भी आपके पास 2,000 का नोट आ गया जिस ट्रांजैक्शन में,
उसकी उसका एंट्री प्रश्न आपको दोबारा इस एक और रजिस्टर में करनी पड़ेगी। जहां पे आपको 2000 का नोट नहीं आया, जी ठीक है। वो आप उसी रजिस्टर में केवल एक ही जगह पे करेंगे। जी, और किसी का कोई क्वेरी है? तो अगर किसी की अभी कोई सवाल किसी का है नहीं, किसी की क्वेरी नहीं है, तो वी कैन क्लोज दिस कॉल एंड थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड if anybody's missed the training today, as I said, tomorrow again we are having it, so please join that time. किसी ने अगर आज ट्रेनिंग मिस किया है, रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप वापस ज्वाइन करें, ट्रेनिंग वापस कल भी होने वाली है। थैंक यू सो मच।